Hello guys and welcome back to my channel Basics the Strong Roots. My name is Richa Yadav and today we will discuss the topic direct and indirect expenses. But before we start, a very happy new year to all of you. May God give you strength and so much blessings in this new year. Thank you and let's start with our topic. So before we delve into the process of direct and indirect expenses, we all should know what are the expenses. So expenses are the cost which are occurred by a company while manufacturing a product, or if a company is in the service providing business, those expenses, that cost which that company occurs while providing that services, those costs are count as expenses. So expenses are divided into two types, direct and indirect expenses. So पहले हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं। तो जब एक्सपेंसेस हमारे होते हैं, कोई भी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कोई भी कॉस्ट होती है, जैसे आप फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, बना रहे हो, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस आपको बियर करने होते हैं वो सब एक्सपेंसेस होते हैं। और सेम इन द सर्विस इंडस्ट्री, आप कोई भी सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हो, उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, सपोज वी कैन से अ लॉयर और अ डॉक्टर, ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए दीज कम्युनिटी हेल्पर्स जो भी एक्सपेंसेस और कॉस्ट बियर करते हैं, या उन्हें सैलरी देनी पड़ती है, या कुछ पेपर प्रोवाइड करने के लिए उन्हें जो भी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, दैट ऑल कम्स अंडर एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड to the manufacturing of a product or services rendered, which we render. So if a company is into the manufacturing business and the company is manufacturing its own product, so whatever the factory expenses are, that will come under direct expenses. जो भी कॉस्ट डायरेक्टली प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रोडक्ट से एसोसिएटेड है, दैट कम्स अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे वेजेस, आई विल राइट इट हियर सो यू गाइस कैन सी इट प्रॉपरली, जस्ट लाइक वेजेस जो हमारे लेबर्स को प्रोवाइड करी जाती है, दैट कम्स अंडर वेजेस। और फ्रेट, these terms I have already explained in my last videos. Freight, then comes carriage inwards, royalty, factory rent, fuel charges, so these are the basic direct expenses which we occur while manufacturing a product, such as wages, freight, carriage inwards, royalty, factory rent and fuel charges. Apart from all these expenses, there are factory power charges and other expenses which are related with फैक्ट्री एक्सपेंसेस। जो भी आपको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए फैक्ट्री में जो भी आपको चार्जेस लगते हैं, जो कि डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें बियर करने पड़ते हैं, दैट कम्स अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड इन द अदर वे, एंड जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग होती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर टू बी नोटेड इन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। Direct expenses, debit side of trading account। जो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी हमारे फैक्ट्री चार्जेस होते हैं, जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, वो सारे एक्सपेंसेस हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं फॉर एन अकाउंटिंग। Now let's start with indirect expenses. So indirect expenses are the expenses which a company uses
for the common purpose. Like if a company is paying office rent, electricity charges, it's paying the insurance, and it's paying the advertisement expenses. And if a company has got the bad debts, you know, bad debts is the amount, I have already told you that bad debts is the amount if a company cannot recover a particular amount from its debtors, that we take as bad debts, and that goes into debit side of the profit and loss account. So the bigger ones, like these are the expenses which a company uses for common purpose for everyone, हर किसी के लिए ये यूज़ होते हैं. पर्टिकुलरली ये एक्सपेंसेस फैक्ट्री में किसी भी कॉस्ट से एसोसिएटेड नहीं है, फैक्ट्री में प्रोडक्ट को बनाने के लिए नहीं होते हैं, और ये कॉमनली यूज़ होते हैं. लाइक ऑफिस तो सबका है, तो ऑफिस में सबके लिए हम किसी प्रोडक्ट के लिए नहीं हो रहा है, सारे एम्प्लॉयज़ के लिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, सैलरीज पे करी जा रही हैं, या इंश्योरेंस किया जा रहा है, या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पे किए जा रहे हैं. तो दैट इज़ कॉमन, वो सबके लिए करी जा रही है, पर्टिकुलरली प्रोडक्ट को बनाने के लिए नहीं किया जा रहा है. So these common expenses come under indirect expenses, and we write these expenses in the debit side of P&L account, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखते हैं, उसकी अकाउंटिंग करते हैं. तो जो हमारे मोटे मोटे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो है सैलरी अकाउंट, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय वेलफेयर चार्जेस, बैड डेट्स. ये हमारे बेसिक हैं जो कि होने ही होने हैं. इसके अलावा और भी कोई चार्जेस होते हैं जो कॉमन पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं, और उनकी अकाउंटिंग हम डेबिट साइड में करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के. इसके अलावा कुछ एक्सपेंसेस हैं जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, लेकिन हम उन्हें एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रीट करते हैं. तो वो एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम इसलिए ट्रीट करते हैं क्योंकि हम उनका प्रॉपर मेजरमेंट नहीं कर पाते, उनमें कोई मटेरियलिटी नहीं होती है, और वो जो कॉस्ट होती है उसे हमें प्रॉपरली दिखाने के लिए एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट करना पड़ता है. क्योंकि किसी भी कोई भी फैक्ट्री चार्ज होगा या कोई भी एक्सपेंस या कॉस्ट अगर फैक्ट्री में हो रही है तो हमें उसमें मटेरियलिटी होनी चाहिए, या कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम उसे एज अ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ट्रीट कर सके. लेकिन जैसे आपका स्क्रू हुआ, जो आप स्क्रू यूज़ करते हो फैक्ट्री में, या नट्स हुए उसके, या फिर थ्रेड हुआ, या फिर ग्लू कह सकते हो आप, तो इन सारी चीज़ों को हम प्रॉपरली मेजर नहीं कर सकते. क्योंकि ग्लू जो पैकिंग बॉटल में आता है उस पर जो लिखा रहता है, वी हैव टू कंसीडर दैट पैकिंग्स मेजरमेंट ओनली. हम उस ग्लू को ऐसा मेजर नहीं कर सकते कि इसमें कितना ग्लू है. सेम गोज विथ स्क्रूज एंड नट्स. वो जो पूरा पैकिंग आता है हमें उस पर ट्रस्ट करना पड़ता है कि ये स्क्रूज एंड नट्स इतने ही होंगे, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते, उनको अकॉर्डिंगली प्रॉपर तरीके से हम उसका अकाउंटिंग नहीं कर सकते. एंड सेम गोज विथ थ्रेड. कितना थ्रेड है, हमने कितना यूज़ किया, कितना वेस्ट किया, ये सब हम उसको मेजर नहीं कर सकते कि ये कितना लंबा था, कितना मीटर था, कितना था, कैसा था. हम उसको किलोज़ में करें कि इतने किलो आया था, या फिर हम उसको लेंथ के हिसाब से मेजर करें. तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए पॉसिबल नहीं है किसी भी कंपनी के लिए, और नोबडी हैज़ दैट मच टाइम. तो हम इन एक्सपेंसेस को एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट करते हैं. So this was it with the direct and indirect expenses. And if you people think and feel that somewhere I was wrong and I haven't explained anything correctly, so please do let me know and write down in the comment section below. And please like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon, because whenever you will press the bell icon you will get the notifications of my new videos. Stay happy and healthy. Bye bye. Take care.